अमेरिका के वैश्विक ख्यात प्राप्त रोबोटिक सर्जन डॉक्टर गर्जा और मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की डॉक्टर नीलम विनय ने मिलकर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए रोबोटिक सर्जरी की सटीकता को नई दिशा दी। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में स्त्री रोग सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ी पहल देखने को मिली। अमेरिका के जाने माने रोबोटिक सर्जन डॉक्टर डेविन एम गार्जा ने मेदांता अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मेदांता के रोबोटिक सर्जन और निर्देशक स्त्री एवं प्रस्तुत रोग विभाग डॉक्टर नीलम विनय के साथ मिलकर रोबोटिक सर्जरी के नए आयाम को तकनीकी पर चर्चा की। इस दौरान महिलाओं के इलाज में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डॉक्टर नीलम विनय ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी ने स्त्री रोग से जुड़ी जटिल सर्जरी को अधिक सुरक्षित और सटीक बना दिया है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी में दर्द कम होता है, खून का बहाव कम होता है और मरीज तेजी से ठीक होकर सामान्य जीवन में लौट पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादातर मरीज 24 से 48 घंटे के भीतर अस्पताल में छुट्टी पा लेते हैं और 2 से 3 हफ्ते में अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर गार्जा ने लाइव रोबोटिक सर्जरी देखी, सर्जिकल टीम के साथ बातचीत की और जटिल मामलों में अपनाई जाने वाली एडवांस्ड तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, मेदांता जैसे संस्थान के साथ जुड़कर काम करना हमेशा प्रेरणादायक होता है। आज के दौर में रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा दे रही है। द विच जैसे रोबोट आधुनिक तकनीक, सही प्रशिक्षण और मजबूत सिस्टम के साथ हम मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज दे सकते हैं। I've been doing for 20 years. What I am finding now is what they're finding now here is what I found out 20 years ago, which is it is the best technology for any soft tissue surgery internally. So for us, it's gynecology. So for our daughters, our wives, our mothers, our sisters to be able to have a big surgery and get back to life sooner recoveries and avoid a large incision. More precision, better vision, and dexterity of our hands. That's what we're finding, and it just gets better as the robot improves. Sir, what is the difference between open surgery and laparoscopy and robotic surgery? What do you think? Open surgery has a lot of pain. Open surgery has a lot more possible complications. Open surgery is old-fashioned. Open surgery is the way they first developed it. Laparoscopy made that better, but there's limits with laparoscopy. Robotic is laparoscopy, but it's more advanced form of laparoscopy. It's advanced toolbox for laparoscopy, and we're able to avoid making big incisions. Where I live, over 98, 99% of the time. This is new to India in gynae. What do you think? What will be the future of gynae robotic surgery? I think the future is what you see right now. It is champions who are amazing surgeons like Dr. Neelam who are advocating for women's health, are advocating that women shouldn't have lesser technology, that they should have the same availability. And that's what the future is going to be. More robots. It's what we've experienced in the United States. More doctors have the choice to choose robotics. What is the latest advancement in the robotic surgery? The literature? Latest advancement. Latest advancement. Oh, latest advancements. We have something called DV5. So we actually can feel with our instruments what we're seeing. And that's a very big thing. The 4K camera. So you're able to see better than the human eye can see internally if we were doing an open surgery. And डॉक्टर डेविन गर्जा यूएसए से आए थे यहाँ पे। हमने इनके अंडर ट्रेन किया था। सो ही केम ऑल द वे फ्रॉम देयर टू सी कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने लखनऊ उत्तर प्रदेश में कैसे उसको कन्वर्ट किया है और कैसे इतना सक्सेसफुल रोबोटिक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। And he just watched me operate and gave us fine tips and he's been very happy. I think he told you that. और यही रहा। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी गायनी में ही हो रही है, क्योंकि गायनी में जो जगह है ऑपरेट करने की वो थोड़ी पेल्विस में छोटी होती है। बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं, रसौलियाँ होती हैं, यंग गर्ल्स को होती हैं, 16-17 साल की बच्चियों को होती हैं और उनका पूरा पेट चीर के इतना बड़ा ऑपरेशन करना उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स।
तो उन महिलाओं को एक छोटे से छेद से अगर हम बड़े बड़े ट्यूमर्स, बड़ी बड़ी बीमारियां बच्चेदानी और अंडेदानी की निकाल सकें, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज बेनिफिट दैट वी आर प्रोवाइडिंग द विमेन ऑफ आवर कंट्री। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मरीज इतनी समस्या में आता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी है, इतना दर्द, इतनी परेशान रहती है महिला, और उनको जब हम रोबोटिक सर्जरी की बेनिफिट बताते हैं तो दे आर अमेज्ड, और रियली उनको कन्विंस करने में हमें कभी कोई समस्या नहीं आई है। एंड देन आप कितना भी कुछ भी कर लें, वर्ड ऑफ माउथ होता है, एक महिला दूसरी को बताती, देखिए हम वहाँ गए, कल ऑपरेशन कराए, आज हम घर आ गए, कल से हम घर का काम कर रहे हैं, हमें कोई दर्द नहीं है, हमें कोई खून नहीं चढ़ाना पड़ा। तो इट्स वर्ड ऑफ माउथ एंड women are coming. On a level we have been able to perform in Uttar Pradesh. It's great.